Johar Jharkhand, I Nidhi welcome you in your channel IFIS Academy. In this series, we are studying about Jharkhand through this book. Book name is Know Your State, published by Aryan. So, I am here to assist you in understand all the topics of this book, which will boost your knowledge and help you in further preparation of JPSC and other state level exam like JSSC, JTET, ASI, and all Jharkhand government exam. So, let's start. As today's 17th session, we are covering third chapter name is Modern History of Jharkhand. So let's start. Whenever we talk about modern history of Jharkhand, we talk about British Empire in Jharkhand. So basically British came in India for trading purpose and gradually they annexed different areas of India and established British Empire all over the India. So when we talk about Jharkhand, British came in Jharkhand through Simbhum areas, basically from the Dhalbhum, and gradually they spread all over the Jharkhand like Porhat areas, Manbhum areas, Chota Nagpur, Plamu, etc. and established British Empire all over the Jharkhand. So in this session, we will talk about British advent in Simbhum and Chota Nagpur. So in earlier session we have talked about British advent in Rajmahal and British advent in Simbhum and Dhalbhum. Okay, so when we talk about British advent in Simbhum, we divided a Simbhum into three parts. First is Dhalbhum, second is Porhat, and third is Kolhan. So in previous session we have talked about British advent in Dhalbhum, and in this session we will talk about British advent in Porhat and British advent in Kolhan and British advent in Plamu. So let's start. So British advent in Kolhan. In 1720, let me show you a map of this so that you can remember all the points. So for this is the map of local dynasties of Jharkhand, and at the time of British advent, and these areas of Simbhum, and this was divided into three parts: Dhalbhum, Kolhan, and Porhat. So British came in Jharkhand through these areas: Dhalbhum, and then Porhat, and then Kolhan. So first of all they came in Dhalbhum, second they came in Porhat, and then Kolhan. Okay, so let's study about this. So first point is, in 1720, the rulers of Porhat, Ghanshyam Singh, was also provided an agreement to pay a tribute in return of the safety and security of his territory. 1720 ईस्वी में जो पोरहाट के रूरल थे घनश्याम सिंह, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ. किस लिए? तो वो उन्हें ट्राइब्यूट देंगे, कुछ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपको इतना ट्राइब्यूट देंगे, इतने पैसे देंगे, और इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट साइन किया. Second point, the ruler of Porhat did this for his own benefit as he wanted to obtain the statue of Pori Devi from the Saraikera ruler. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्हें क्या चाहिए था? पोरी देवी का स्टैचू चाहिए था. पोरी देवी कौन है? तो ये कुल देवी है. ठीक है, सिंहभूम के जो सी डायनेस्टी था, सी डायनेस्टी का कुल देवी थे पोरी देवी, और उन्हें ये स्टैचू चाहिए था पोरहाट के राजाओं को. तो वह स्टैचू पाने के लिए ये एग्रीमेंट पे साइन करते हैं. ठीक है, ही वांटेड टू इस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी ओवर सरायकेला एंड खरसावा. साथ ही साथ वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि सरायकेला और खरसावा का जो एरिया है उसमें उनका सुप्रीमेसी हो जाए, उनमें उनका शासन हो जाए. एंड ही ऑल्सो वांटेड टू गेट राइट ऑफ होस्ट सप्रेशन विद द ब्रिटिश असिस्टेंस. अब वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश का साथ मिले. ब्रिटिश के साथ मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं? वो ट्राइब्स को सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. इसलिए पोरहाट ने क्या किया? ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया. यही होता है ना, लोकल लोग क्या किए? लोकल डायनेस्टी क्या किए? एक दूसरे से दुश्मनी था तो एक दूसरे की दुश्मनी में एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को पे विजय पाने के लिए क्या किए? ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट कर लिए. यही तो इनके साथ एक रॉन्ग स्टेप हो गया था. तो नेक्स्ट हम आते हैं कोल्हान में. ठीक है, तो पोरहाट समझ में आ गया, पोरहाट में क्या हुआ था. अब हम आते हैं कोल्हान में. कोल्हान कहेंगे तो कोल्हान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ जो हो ट्राइब्स थे वो बहुत ही स्ट्रगल किए और लंबे समय तक ब्रिटिश से
फाइट करते रहे और यहाँ पे ब्रिटिश को शासन करने में बहुत लंबा समय लग गया। 1890 में ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर पाए थे। देखिए 1777 से शासन शुरू हुआ था, ठीक है। 1777 में ढालभूम में हुआ, ढालभूम के बाद पोरहाट में हुआ, यानी 1777 की बात है। और कोल्हान में इन्हें शासन करने में कितना समय लग गया? 1890। कितना लंबा समय लग गया। इतने लंबे समय तक कोल्हान में जो हो ट्राइब्स थे वो क्या किए? फाइटिंग करते रहे अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोल्हान के बारे में पढ़ते हैं। कोल्हान वॉज द सेंटर ऑफ हो ट्राइब्स। कोल्हान किसका सेंटर था? हो ट्राइब्स का था, यानी कि यहाँ पे हो जनजातियाँ ज़्यादा रहती थी। द होस वेयर फ्रीडम लविंग एंड ए वॉरियर क्लास। हो ट्राइब्स कैसे थे? तो वो थे फ्रीडम लविंग, यानी स्वतंत्रता प्रेमी थे, और वो क्या थे? वॉरियर थे, लड़ाकू स्वभाव के थे, ठीक है। बट एक्सप्लॉइटेड बाय सिंहभूम्स रूलर्स। लेकिन उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषण किया जाता था। किनके द्वारा? सिंहभूम के शासकों के द्वारा। हु यूज देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट देयर होन राइवल्स। वो क्या करते थे? हो ट्राइब्स का यूज करते थे, अपना जो लड़ाई होता था, अपना जो राइवल्स होता था, उसमें हो ट्राइब्स का यूज करते थे। Due to the attack of Ho on Nagvansis areas, the trade route through Kolhan became unsafe. और नागवंशी के साथ इनका, हो ट्राइब्स का नागवंशीस के साथ नहीं बनता था। तो हो ट्राइब्स क्या थे? नागवंशीस पे अटैक करते थे, जिसके कारण जो ट्रेड रूट था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश सिंहभूम से जब छोटा नागपुर आना जाना करते थे, इनका जो ट्रेड रूट था वो प्रभावित होता था, ठीक है। दिस इवेंट ब्राउट अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टूवर्ड्स दिस एरिया। और ये इवेंट था जो अटैक किया हो ट्राइब्स ने, तो ये क्या किया? ब्रिटिश को कोल्हान की तरफ अट्रैक्ट किया। In 1820, the company sent Major Rafsage with a strong force to the Ho areas to suppress them. और 1820 में क्या हुआ? 1820 में मेजर रफसेज को भेजा गया हो को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, हो जनजाति को दबाने के लिए। बट ही हैड टू सेट बैक अगेंस्ट द होज व्हेन ही ट्राइज टू हेल्प द सिंहभूम रूलर्स इन द मैटर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेकिन उसने क्या किया? जो मेजर रफसेज आए थे वो सिंहभूम का साथ दिए टैक्स कलेक्शन में, और इसके कारण क्या हुआ? हो के साथ उनका मतभेद हुआ और हो को सप्रेस नहीं कर पाया। द कॉर्नर रिचार्ड कैम विथ ए बिग आर्मी एंड आफ्टर ए मंथ ऑफ बैटर हो एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। और इसके बाद क्या हुआ? कर्नल रिचार्ड आए, ठीक है, कर्नल रिचार्ड आए बिग आर्मी के साथ, और यहाँ पे 1 मंथ का बैटल हुआ, 1 मंथ तक लड़ाई हुआ, और उसके बाद हो ट्राइब्स क्या किए? उनकी सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिए, ब्रिटिश की सोवरेनिटी को। आफ्टर फ्यू ईयर्स अगेन हो पार्टिसिपेटेड वेरी एक्टिवली इन कोल लिबरेशन। और इसके कुछ समय बाद क्या हुआ? कोल लिबरेशन फिर से हुआ, ठीक है। 1831 से 1832 में कौन किए थे बताइए? 1831 से 1832 में। और in 1836 the British force came to suppress the revolt, and after 4 months of battle the Ho surrendered in फरवरी 1837। और उसके बाद क्या हुआ? 1837 में इन्हें सरेंडर हुआ। इसके कोल्हान का जो कोल लिबरेशन हुआ 1831 से 32 में, उसके बाद 1836 में लास्ट ही ब्रिटिश जब दबाने आए तो 4 मंथ के यहाँ पे फिर से बैटल हुआ, और उसके बाद 1837 में हो सरेंडर कर दिए खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे हो सरेंडर कब किए? 1837 में। लगभग कितने वर्ष? 40, और उधर 20, लगभग 60 वर्ष बाद, ठीक है। ब्रिटिश जब झारखंड में आए उसके लगभग 60 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि कोल्हान में ब्रिटिश का एम्पायर शुरू हुआ। It was the first time when the host enters in the direct relation with the company with the same condition as were with the rulers of पोरहाट एंड ढालभूम। और 1837 में हुआ कि जिस तरह से पोरहाट और ढालभूम का रिलेशन था, कंपनी के साथ एग्रीमेंट था, उस तरह से कोल्हान को भी करना पड़ा। ये कब हुआ? 1837 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1837। द रूलर्स ऑफ सिंहभूम एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन 1890। और पूरा जब हम सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम के जो रूलर्स थे उन्होंने सुप्रीमेसी कब एक्सेप्ट किया? 1890 में, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रिटिश एडवेंट इन प्लामू। तो प्लामू का एरिया आपको पता ही है, तो चलिए पढ़ते हैं ब्रिटिश एडवेंट इन प्लामू। कैप्टन कैमेक कैम टू प्लामू विथ हिज फोर्स इन 1771। कैप्टन कैमेक 1771 ईस्वी में प्लामू आते हैं। आफ्टर दैट टाइम द फोर्ट वॉज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चिरंजीत राय।
और इस टाइम पे फोर्ट पे जो प्लामू किला था उस पर किसका शासन था, चिरंजीत राय एंड जयनाथ सिंह। व्हेन कैमक प्रोसीडेड टू प्लामू दे बोथ मैनेज टू स्केप टू रामगढ़ एंड द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। जब ब्रिटिशर्स जब प्लामू के एरियाज में आते हैं तो चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों स्केप कर जाते हैं प्लामू फोर्ट से और पहुंच जाते हैं रामगढ़ में। और इस तरीके से जब जब फोर्ट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो वहाँ पे कौन शासन कर लेता है, ब्रिटिश शासन कर लेता है। द पटना काउंसिल इंस्ट्रक्टेड कैमक ऑन 19 Feb 1771 टू टेक पोजिशन ऑन द प्लामू एंड टू डिक्लेयर गोपाल राय एज द रूलर ऑफ कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और 19 फरवरी 1771 में क्या होता है, कैप्टन कैमक को आदेश मिलता है कि वो गोपाल राय को वहाँ का राजा बना दे और उसके बदले में उन्हें क्या लेना है, उनसे रिवेन्यू लेना है, ठीक है, यानी कि पैसा लेना था, ठीक है। द काउंसिल वॉज प्लीज विथ कैमक्स सक्सेस अगेंस्ट प्लामू एंड ऑनर्ड एंड रिवार्डेड हिम विद द अदर्स हु हैड असिस्टेड द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन। और काउंसिल जो था, ब्रिटिश इंडिया का काउंसिल जो था, वो क्या होता है, कैमक का सक्सेस से खुश हो जाता है और कैमक के साथ जो जो आर्मी में थे उन्हें रिवार्ड देता है। On 9th of April 1771, Patna Council resolved to leave Plamu and under the management of Gopal Rai and Bhavani Si and the Fauzdar of Plamu. और उसके बाद 9 अप्रैल 1771 में क्या होता है, पटना काउंसिल जो होता है वो इस प्लामू फोर्ट को छोड़ने के लिए, प्लामू को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि किस चीज़ पे, तो इनका जो अपना एग्रीमेंट होता है, गोपाल राय, भवानी सिंह और फौजदार जो थे प्लामू के, उनके बीच जो भी मैनेजमेंट होता है उसके बाद इनका ये प्लानिंग होता है कि ठीक है प्लामू को वे छोड़ देंगे। इन 1771 जून जयनाथ सिंह अगेन स्टार्टेड डिस्टर्बेंस इन प्लामू and was suppressed by Lieutenant Mackenzie and Lieutenant Keating and Lieutenant Camek। और 1771 में जयनाथ सिंह फिर से डिस्टर्बेंस शुरू कर देते हैं प्लामू में और जिसे सप्रेस किया जाता है किसके द्वारा, तो लेफ्टिनेंट मैकेंजी, लेफ्टिनेंट कीटिंग एंड लेफ्टिनेंट कैमक के द्वारा। फाइनली ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द प्लामू एंड टू सेटल इन सुरगुजा। और उसके बाद जयनाथ सिंह को क्या होता है कि प्लामू से निकाल दिया जाता है और प्लामू से निकलने के बाद जयनाथ सिंह कहाँ पे सेटल लेता है, तो सुरगुजा के जंगल में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है। बाय द मिड ऑफ जुलाई 1771 द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड इट्स अथॉरिटी ओवर द होल ऑफ प्लामू। और 1771 तक में जुलाई 1771 तक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो प्लामू में शासन कर लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश एडवेंट इन छोटा नागपुर, ठीक है, और ब्रिटिश एडवेंट इन हजारीबाग। सो दिस सेशन इज ओवर। इफ यू लाइक दिस सेशन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।